Share video on Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok. اے تمام جہانوں کے رب، اے اللہ ذوال جلال و اکرام، ہم تیرے ہی سامنے اپنی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم پہ اپنا خصوصی کرم، فضل، رحمت اور برکت نازل فرما، مانا کہ گناہوں سے ہمارے اعمال نامے کالے سیاہ ہو چکے ہیں، مگر ہم تجھ سے مایوس نہیں، کیونکہ تو ہی غفور و رحیم اور رحمان و رحیم ہے۔ تو ہماری تمام خطائیں اور گناہ معاف فرما، بھلے وہ ہم سے دانستہ طور پہ سرزد ہوئے یا نادانستہ، بھلے ہی وہ قابل معافی ہے یا ناقابل معافی، بھلے وہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ۔ اے ہمارے مالک، تو درگزر فرما، ہمیں اپنی شرف قبولیت میں قبول فرما، ہمیں حصول رزق کے لیے کسی کا بھی محتاج نہ کرنا سوائے اپنی ذات کے، ماری عزت و وقار کا بھرم قائم رکھنا، ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ رکھ، ہمارے رزق میں توسیع اور برکت عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، وہ کسی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی بڑی یا دائمی مرض میں، سب کو شفا عطا فرما، اپنے جناب سے شفا کا بہانہ بنا دے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، ایسے بے اولاد جوڑوں کو نیک، صالح، لائق و فرمان بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی بیٹیوں یا بیٹوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور شادی نہیں ہوئی، انہیں نیک، شریف، مخلص اور قدردان اور سچی محبت کرنے والا جیون ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کا کوئی اپنا طویل عرصہ سے یا تھوڑے عرصہ سے لاپتہ ہے، جلد انہیں لاپتہ کے متعلق اچھی خوشخبری عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی جائز خواہشات پوری فرما دے۔ اللہ، ہم سب کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی والی اور خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور عطا فرما۔ یا اللہ، فلسطینی عوام پہ اپنا رحم و کرم کر اور ان کی ظاہر و باطنی مدد فرما، اور اسرائیل اور اس کے حامیوں اور کسی بھی طرح کے سپورٹرز اور اعلی کاروں کو نست و نابود اور نشان عبرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی اہم اور توجہ طلب، ضرور پڑھیں۔ اس چینل پہ نشر کیے گئے تمام ویڈیوز خالصتاً تفریحی مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، جس کا مقصد تفریح اور شعور اور سوچ کے دائرے کو وسیع اور حقیقت پسندانہ بنانا ہے، اور خاص کر نوجوان نسل کو منشیات، قتل و غارت، مایوسی اور خودکشی جیسی رجحانات سے دور رکھنا ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ مثبت رجحانات کو بہت مؤثر اور طاقتور انداز میں پیش کیا جائے، جو ان کے ذہنوں پہ گہرے نقوش مرتب کرے۔ لہٰذا اگر کسی مکتبہ فکر یا کسی خاص سوچ یا کسی خاص کمیونٹی کے لوگوں کی دل آزاری ہو، تو یہ محض غلط فہمی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کہانی کے تمام تر کردار، نام، مقامات اور معلومات فرضی ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی صاحب مضمون کسی چیز کا ذمہ دار ہے۔ Subscribe the .YouTube channel. Share video on Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok. چاچا چھوٹو مولانا اظہر کا ایک مداح مگر بہت منفرد، جو ایک ہی وقت میں چاچا بھی کہلاتا ہے اور چھوٹو بھی۔ شرافت اور سادگی کا ایک ایسا پیکر جو معاشرے کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ عمر کے 42 سال گزارنے کے باوجود چھوٹو جیسے حقیر لقب سے جان نہ چھڑا سکا، نہ ہی چھوٹو لفظ کی وجہ سے درپیش بے توقیری سے۔ قسط نمبر 11، اس کے حالات زندگی کے گرد گھومتی تلخ تحریر۔ مولانا اظہر کی سٹی چیئرمین اقبال کسوسی اور انڈر ورلڈ ڈان مائیکل چریتو کے درمیان بھیانک گفتگو کی رات بھر دماغ میں بازگشت اور بے چینی اور کرب۔ پھر ڈان مائیکل چریتو کی طرح مولانا نے بھی بامقصد بامانی خواب دیکھی، جو شراب خانے کے برے اثرات پہ مشتمل تھی، اور خواب میں جلتی ہوئی عمارت اور جلتے عورتوں بچوں کی دھاریں سنی، اور مرحوم علامہ صلاح الدین شمس کی زیارت ہوئی۔ مولانا کی جیب میں 13 عدد چابیاں، ہر چابی ایک نیا راز ہے، جن کی تفصیلات قسط نمبر 13 میں پہلی چابی سے لے کر 13ویں چابی کے راز وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ قسط نمبر 13 میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولانا اظہر کی جیب میں 13 عدد چابیاں تھیں، جو سوتے ہوئے انہیں چبھ رہی تھیں، جن میں کچھ بہت اہم چابیوں کا ذکر مختصر یہ ہے۔ ایک چابی جو ایک ممنوعہ کتاب والی لائبریری کی ہے، جس کے راز 3 افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور چابی کالج کے بند کمرے کی ہے، جہاں ایک بچہ اپنی روداد بنچ پہ لکھتا تھا، پھر قتل ہو گیا۔ اس کے متعلق اہم ترین راز اس کمرے میں بند ہے۔ ایک چابی لائبریری کی ہے، یہاں ایک ایسی مخلوق تھائی لینڈ کے سمندروں سے پکڑی گئی،
जिसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं। एक चाबी एक बेवा के घर की है जिसके 9 बच्चे हैं। एक चाबी मौलाना की कनवारी और हसीनो जमील छोटी साली के दूसरे घर की है, मगर वो एरिया आवारा मिजाज लड़कों से खच्चा खच भरा हुआ है। और 13 चाबियों का तफसीली अहवाल जानिए किस्त नंबर 13 में। अलम गुलाम अच्छी, जिसे मौलाना अजहर बिल्कुल भी नहीं जानता था, मगर कुदरत ने क्या खूब किया, मौलाना अजहर को इत्तेफाकन इससे मिलवा दिया। अब सारे मामले का बोझ गुलाम अच्छी ने उठा लिया, क्योंकि वो ऐसा शख्स था जो तमाम शैतानी कुव्वतों से टकरा सकता था, क्योंकि इसका ताल्लुक जंगल में शेर और समंदर में वेल मछली जैसे सबसे ताकतवर सियासी घराने से था। खुद दुनियादारी का उस्ताद और कामयाब मौका शनास था। इसने इस मिशन को मजहबी अव्वलीन तरजीह समझकर कबूल कर लिया। यूं मौलाना किसी हद तक तो मुतमईन हो गए। किस्त नंबर 15 दरअसल जल्दी में और बाज़ मसरूफियात की वजह से नामुकम्मल अपलोड हो गई, जिसका बाद में मुझे इल्म हुआ। लिहाजा इसी किस्त नंबर 15 को दोबारा मुरतब करके अब पूरी तवज्जो से आपके लिए पेश कर रहा हूँ। यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आएगी। इसी टाइटल तस्वीर के साथ दोबारा पेश खिदमत है। इसमें शानदार एनिमेशंस और आवाज़ का इफ़ेक्ट शामिल किया गया है ताकि आपको हकीकत का एहसास हो। शुक्रिया। मच्छी की पहली कावश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिकॉर्ड रूम में आमद। सुबह के वक्त नासिराबाद के म्यूनिसिपल दफ्तर की राहदारियों में हस्मे मामूल खामोशी थी, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर 11 बजे तक अमूमन बहुत कम लोग आते हैं। अमूमन खामोशी छाई रहती है और बस परिंदों की चहचहाहट जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हर कमरे में सुनाई देती है, क्योंकि हर कमरे के रोशनदानों से चिड़ियां आती जाती रहती है और मुसलसल चहचहाती रहती है। गुलाम एची अपनी नई नवीली चमकती कार टोयोटा 82 में दफ्तर पहुंचा। पार्किंग प्लाट में कभी एक वाकफ मिल रहा है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। किसी के साथ मुख्तसर गुफ्तगू, किसी के साथ तवील। 2 घंटे तो उसे पार्किंग एरिया में लग गए। दरअसल पार्किंग एरिया म्यूनिसिपल दफ्तार के दरमियान वाक़े है और इसका पुख्ता फर्श है। 20 कमरों के दरवाजे इसी सहन में खुलते हैं, इसलिए कोई किसी भी काम से किसी भी दफ्तर आया हो उसे इस बड़े साइज के फर्शी सहन से गुजर कर ही जाना होता है। हत्ता कि एक कमरे से निकलकर किसी और कमरे में भी जाना हो तो भी यही से गुजर होगा, भले कोई कार पे आया हो या पैदल या मोटरसाइकिल, पीड़िया साइकिल पे, भले ही तांगे या गधा गाड़ी पे। गुलाम अच्छी अपनी नई नवीली टोयोटा 82 में दाखिल हुआ। गाड़ी की चमक, उसकी जोतों की चमक और उसके चेहरे का एतमाद बिल्कुल पुरसकून। पार्किंग एरिया में दाखिल होते ही जैसे पुराने और नए आर्जी मुस्तकिल या तवील अरसे के लिए जानने वालों का मेला लग गया। कोई मुसाफे के लिए लपका, कोई गले मिल रहा है, कोई वहीं खड़े खड़े गप लगाने लगा, कोई गुलाम अच्छी का हाथ पकड़कर हुजूम से बाहर लेकर जाने की कोशिश करने लगा। अलहदगी में बात करने के लिए कुछ की गुफ्तगू महज मजाक और खुशगप्पियों, कुछ हाल अहवाल और गुलाम अच्छी की मालूमात, जैसे कि आपकी रहाइश कहाँ है, मुलाकात करनी हो तो कौन सा ठिकाना है, जबकि कुछ ठेकेदारी या दीगर किसी अहम काम के लिए अलहदगी में संजीदा गुफ्तगू करने के मुतमन्नी थे। गोया कार पार्किंग एरिया में वो किसी सिटी चेयरमैन या वजीर आला से कम न था। कमाल की शानो शौकत और पब्लिक डीलिंग। अक्सरियत उमरा थे, जबकि कुछ गरीब भी थे। कोई कान में आकर धेरे से किसी बात का जिक्र करने लगा। ऐसे ऐसे दिलचस्प मौज़ूआत कि इंसान भूल ही जाए कि वो यहाँ क्यों आया था, न चाहते हुए भी खो जाए। मगर गुलाम अच्छी किसी भी मामले में ज्यादा धंसने की कोशिश न करता। मौजू अधूरा छोड़कर दूसरे की तरफ बढ़ जाता। दोस्तों के साथ हंसी मजाक और मामलाते जिंदगी, चपरासियों के साथ मजाक मगर टू दी पॉइंट, और अफसरान के साथ मोहतात रवैया। यूं लगता था जैसे वो 10 चेहरों वाला इंसान है। ये पार्किंग एरिया दरअसल नासिराबाद के म्यूनिसिपल दफ्तर का दिल था, बहुत ही अहम। वो भी गुज़श्ता 40-50 साल से, और कई नस्लें आई कई गईं, मगर न बदला पार्किंग एरिया का माहौल और रश। यहाँ से गुजरे बगैर कोई कमरा नहीं पहुंचा जा सकता था, इसीलिए गुलाम अच्छी के हाथ मुसलसल मुसाफिहों में मसरूफ थे। कभी कभार किसी क्लर्क के कमरे से फाइलों के पलटने की हल्की सी आवाज आ जाती, वरना बस परिंदों की चहचहाट
जो इस इमारत के हर कमरे में गोया अपनी मौजूदगी का ऐलान करती थी। ये वो वक्त था जब दफ्तर के दरवाजे खुल तो जाते थे मगर काम शुरू नहीं होता था। हर कमरे की अक्सर कुर्सियां खाली पड़ी नजर आती। इस कुर्सी का मौसूफ या तो अभी दफ्तर नहीं पहुंचा या फिर अभी घर से ही नहीं निकला या किसी और कमरे के अपने हम मुर्तबा दोस्तों के साथ बैठा गपशप लगा रहा था या फिर दफ्तर आने के बाद फिर किसी काम से चला गया था। मैं अगर गुलाम अच्छी इसी और के मसला हल करने आया होता, वो आधा दिन पार्किंग एरिया में मेल मुलाकातों और गपशप में गुजार देता, खासकर किसी गरीब शख्स या किसी बेवा के किसी मसला के सिलसिला में, क्योंकि बड़े लोग गरीब की कहाँ परवाह करते हैं, बल्कि अगर कोई गरीब बेवा औरत हो या उसके बच्चे या बेटियां भी हमरा हों तो फिर तो ये तासुर देने के लिए कि देखो मैं कितना अहम और ख़ास हूं कि हर शख्स मेरा दोस्त है और मुझसे मुसाफहा करना बाइस फ़ख्र समझता है, लिहाजा मुझे आम इंसान समझने की गलती ने करना, तो उस दिन उसने इस शख्स से भी मुलाकात करनी है, गपशप लगानी है जिसे आम तौर पर कभी घास नहीं डालता। हर एक के साथ लंबी गपशप और 20 बार अतराफ के 11 होटलों पे जाके चाय पीनी है। फिले ही गरीब जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद ही फौत हो जाए, यानी दफ्तरी वक्त ही गुजर जाए। इन बेचारों का अहम तरीन काम जहां था वहीं रह जाए। सबसे घटिया पहलू ये कि अगर गरीबों के उस काम की वहीं आखिरी तारीख हो तो उससे बुरा क्या हो सकता है। उससे तो बेहतर था कि पहले ही इनकार कर देता, मगर मसला इस सोच का है कि गरीब बच्चों और ख़वातीन के लिए खुद को आइडियल के तौर पे पेश करना और उन्हें मुतासिर करता, अपनी शान और शौकत दिखाता ताकि उनके लिए आइडियल पर्सनैलिटी बन जाए। ये एक बहुत तवील मौजू है जिस पे अभी गुफ्तगू मुमकिन नहीं। बहरहाल गुलाम अच्छी आज इस दफ्तर में किसी के मकसद की खातिर नहीं, खुद अपने मकसद के लिए आया था, इसलिए किसी दोस्त की परवाह न थी। मगर अब तक बज़ाहिर फजूल में गुजरे 2 घंटे भी दर हकीकत फजूल ना थे। दरअसल वो डायरेक्ट तामीरात के मुताल्लिक फ़ाइलों को हाथ डाल के दूसरे फरीक को अलर्ट नहीं करना चाहता था, लिहाजा किसी ऐसे बहाने की तलाश में था जिसके तवस्सुत से वो किसी को शक डाले बिना महफूज रास्ते से इन फाइलों तक पहुंचना चाहता था कि किसी को मामूली सा शक भी ना गुजरे और वो दिन दिहाड़े अमले से भरे दफ्तर में भी अपना काम खुफिया और महफूज तरीके से कर ले। 2 घंटे के मेल मिलाप का मकसद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के पार्किंग एरिया से गुजरकर ड्यूटी पर जाते अफसरों में कोई काबिल एतमाद और मौजू शख्स की तलाश थी। इसीलिए 2 घंटे गुजर गए मगर कोई मौजू अफसर ना मिला जिस पे एतबार किया जा सके। हर दूसरा अफसर खुशामद मिजाज और इकबाल कसूसी का टट्टू, अगर कोई आद ईमानदार गुजरा भी उससे खास सलाम दुआ ना थी, या फिर वो इतने निचली सतह का अफसर था कि उसकी रिकॉर्ड रूम तक अपनी रसाई ना थी और ना ही जुर्रत थी। वो गुलाम आची के लिए रिकॉर्ड रूम खुलवाए, फिर उसे इत्मीनान से फाइलें खंगालने दे। रिकॉर्ड रूम के नाम से तो बड़े बड़े अफसरों की टांगें कांपती थीं। बज़ाहिर रिकॉर्ड रूम 20 बार खोला बंद किया जाता, मगर इकबाल कसूसी के हुक्म से वहां से फाइलें निकाली और जमा की जाती थीं, मगर बड़े बड़े म्यूनिसिपल अफसरान ही उसकी निगरानी करते और आ जा सकते थे, या फिर जिसे वो खुद अंदर ले जाएं। बज़ाहिर रिकॉर्ड रूम एक आम सा कमरा था, मगर अब उसमें इकबाल कसूसी का वो आमाल नामा बन चुका जिसमें इकबाल कसूसी का सारा कच्चा चिट्ठा जमा था। इसीलिए अब ये ममनुआ कमरा बन चुका था जिसकी सख्त निगरानी की जाती थी। गोया बिजली की नंगी तार बन चुका था। वहां कौन जा रहा है, कौन निकल रहा है, किसे कौन सा अफसर लेकर जा रहा है, इस बात की सख्त निगरानी की जाती थी। 1984 का दौर है, 2025 नहीं के सीसीटीवी कैमरे नस्ब हों। उस दौर में मातहतों की आंखें ही सीसीटीवी कैमरा थी। इसीलिए तो गुलाम आची को इतना मोहतात होना पड़ा कि 2-2.5 घंटे नज़र रखने और तलाश करने में गुजार दिए। दरअसल इसके अपने जहन करना था, लिहाजा सब की तरफ देखकर उनकी चाल, उनकी अंदाज, उनके मौज़ूआत, उनकी शक्लें देखकर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि ये अफसर क्यों मौजू नहीं और ये किस माइंडसेट वाला शख्स है। गुलाम अच्छी की नज़र इस मायूसी के आलम में, जब वो अभी सोच ही रहा होता है कि आज के लिए तो ना अंदर का मौजू अफसर मिला ना ही बाहर का मौजू,
जिसके दफ्तर में गहरी जड़ें और असर रसूख हो। लिहाजा मुझे अब कल ही आना चाहिए। अगर कल भी ना मिला तो तब तक रोज, जब तक किसी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं हो जाती। ये सोचकर वो अभी अपनी कार टोयोटा 82 की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसकी नज़र अचानक एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसकी पौने 4 माह से तलाश थी, जो एक मुअम्मा बन चुका था, जिसके मरने की खबरें भी बहुत सी जुबानों से सुन चुका था। उसका अपना भी ख्याल था कि उसके मुताल्लिक हर ठिकाने को मैं खुद 20 बार खंगाल चुका हूँ। जमीन के ऊपर होता तो जरूर मिल जाता, यकीन ना वो जमीन के नीचे जा चुका है, इसलिए मैं उसे जमीन के ऊपर ढूंढते ढूंढते नाकाम हो गया हूँ। वैसे भी उसका दुश्मन जो उसे तलाश कर रहा था उसके नाक की हंस खोजी कुत्तों से तेज, जिस्म चीते से तेज, दिमाग लोमड़ी से तेज, नजरें उकाब से तेज है। उससे कैसे छुप सकता है? गर जब गुलाम अची ने उसकी तलाश तर्क कर दी और दिल में ये यकीन घर कर गया कि उसकी तलाश से ज्यादा हकीकी चीज ये है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट तलाश किया जाए, जो शायद जल्द मिल जाए या किसी अस्पताल के सर्द खाना में लावारिस पड़ा मिल जाए। लेकिन आज वो लाश किसी कब्र से निकलकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस पहुंच गई। आंखों को यकीन ना आ रहा था, बिल्कुल एक ख्वाब नुमा ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक और किरदार पर पड़ी, मौजूदा मसला के लिए सबसे मौजू अफसर तनवीर समोया। Share video on Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok.